رمضان المبارک کی پہلی تاریخ 570 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے. آپ کی امی جان کا نام ام الخیر فاطمہ، ابا جان کا نام سیدنا ابو سہل صالح. اللہ اللہ 4 بیویاں تھی، 49 اولاد، 27 لڑکے 22 لڑکیاں. پیران پیر جب پیدا ہوئے رمضان کی پہلی تاریخ، ماں دودھ دے رہی ہے، بچہ دودھ نہیں لیتا. پہلے دل کا بچہ روزہ رکھنے لگا، ماں پریشان ہے، میرے لال دودھ پی لے، مگر بچے نے نہیں پیا. مغرب کا ٹائم ہو گیا، بچے نے دودھ پی لیا. سحری تک دودھ پیا، سحری کے بعد پھر نہیں پیا. ماں کو ذرا چنتا ہو گئی. کیا بات ہے، بہت اچھے، سبحان اللہ. اور ہر ماں کو ہوتی ہے جی 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 کہ میرا بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا. بے شک بے شک. ایک دن بڑے پیر کے باپ سے کہا ماں نے، کہا سنو جی، جو اپنے گھر میں بچہ پیدا ہوا، جیسے سحری کا ٹائم ختم ہوتا دودھ پیتے نہیں، دن بھر بھوکا رہتا. جی 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 اور جب افطار کا وقت ہوتا تو دودھ پینے لگتا. بے شک. کہا دکھا لو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. بڑے پیر کے باپ مسکرا کر کے کہنے لگے، سنو ام الخیر فاطمہ، جس دن بچہ پیدا ہوا اس سے 1 رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت میرے آنگن میں آئے ہیں اور آ کر کے کھڑے ہیں، مجھے بلایا اور میرے موڈے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ابو صالح، تمہارے گھر میں جو بچہ کل کو پیدا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا. کیا بات ہے، بہت اچھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت رضویوں کی تقریر، نبی کے دشمنوں کی پھوٹ گئی تقدیر. اللہ کا ولی ہوگا. کیا بات. اب اعلیٰ حضرت بولے، بڑے پیار سے بولے، تم بھی تو جھوم کے بولو. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا. تم بھی تو جھوم کے بولو. جی جی جی. اعلیٰ حضرت بولے، ابھی جو سنیے ایک شعر لکھنے کا تھا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. بہت اچھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے. ایک مرتبہ جیسے یہ بچے اب مجھے بات یاد آنے، بچے نا ایسے ہی 5.5 سال کے تقریباً بڑے پیر صاحب تھے. تو بچے کھیل رہے تھے، بڑے پیر صاحب بھی کھڑے تھے. ایک اللہ والا مجذوب نکل کے چلا گیا. اس نے بچوں کو دیکھ کے ہنسا اور مسکرایا، مسکرا کے بچوں سے بولا السلام علیکم. اب سارے بچے چونک گئے، بولے وعلیکم السلام. اور بچے تو سلام کا جواب دے دیتے ہیں مگر چچے کم سلام کرتے ہیں. بولے السلام علیکم. سارے بچوں نے جواب دے دیا. بڑے پیر صاحب نے 2 مرتبہ دیا. جی جی. کتنی مرتبہ دیا بولو؟ 2. جیسے ہی اس اللہ والے کے پاؤں آگے بڑھ رہے تھے ٹھہر گیا، پیچھے پلٹا. کون ہے جس نے 2 مرتبہ جواب دیا؟ جلدی بولو. تو بچے جھوٹ نہیں بولتے. جی. بچوں نے پکڑوا دیا، صاحب یہ ہے عبد القادر. اللہ جب چہرہ دیکھا تو سید زادے تھے، نورانی. بے شک. اور جب پیشانی دیکھی تو اللہ کا ولی. بولے بیٹا اونچے خاندان کے،
आला किस्मत पाई, ऊंचा मकाम है, मगर इतना बताओ क्या तुम्हें सलाम के आदाब मालूम नहीं? अब सुनो बड़े पीर की, तुमने ये सजाया ना, किसी की बेटे या बेटी की शादी नहीं है, आले रसूल बड़े पीर की मोहब्बत में सजाया। अब जरा सुनो, बड़े पीर कहने लगे, छोटे से बच्चे कहने लगे, बाबा मुझे सलाम के आदाब मालूम है, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। वो अल्लाह वाले बोले, बेटा एक मर्तबा सलाम का जवाब एक ही मर्तबा दिया जाता है, तो तुमने 2 मर्तबा क्यों दिया? बड़े पीर कहने लगे का बाबा सुनो, आज से 6 साल पहले आप मेरे घर से गुजर रहे थे और मैं अपनी माँ के पेट में था, आपने सलाम किया, आपने सोचा कि सैयदों का घर है, रहमत के फरिश्ते होंगे, आपने सलाम किया, मेरी माँ ने जवाब नहीं दिया, इसलिए मेरी माँ किसी गैर मर्द को आवाज नहीं सुनाती थी, मेरी माँ पर्दा करती थी। अल्लाह अल्लाह सुनो, बड़े पीर बोले, मैं अपनी माँ के पेट में था तो मैंने 2 मर्तबा जवाब इसलिए दिया, एक जवाब आज का है और एक जवाब उस दिल का है। मसलके आला गौसे पाक की शान है आला, पूरी दुनिया में है आपका बोलबाला, और हमारे रजा की चलती है रेल, और नबी सहेज कर गौसे ख्वाजा सहे मेल, नजदी है टिकट ले ले वरना पहुंचा देगी जेल। तवज्जो ना, तवज्जो। अब बड़े पीर की बात आई है तो मैंने कहा सुनाई दूं। एक काम की बात तुम्हें बता दूं, काम की बात सुन लो। आज अगर किसी की इस हाथ से दो, उस वाले हाथ से, अगर किसी की ना आज बिगड़ी हुई हो तो आज दिल ही दिल में दुआ कर लो, तमन्ना कर लो, ऐ अल्लाह तू गौसे पाक का सदका अता फरमा दे, तो आने वाले साल में हम भी जिक्र कराएंगे। 1 साल पलट के नहीं आएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा बेशक बेशक इंशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात? बहरहाल, और अगर किसी की कोई औलाद ना हो, आज तमन्ना कर लो, आरज़ू कर लो, किसी का काम ना चलता हो, किसी की कोई परेशानी हो, तुमने ये सजाया ना, आज ऐसे बैठो जैसे गौसे पाक के दरबार में बैठे हो। जी बेशक। मन्नत मान लो, मगर मेरी बहनें आड़ में बैठी हैं, इनसे अर्ज करूंगा छोटी सी मन्नत माने जी, क्योंकि औरत अगर मानती है तो बहुत लंबी चौड़ी मन्नत मान लेती है, चाहे शौहर बिके या घर बिके। एक औरत के सर में दर्द रहता था, बोली या अल्लाह अगर मेरे सर का दर्द रुक गया तो 500 पतीले पकाऊंगी। 1.5 बीघा जमीन और 500 पतीले, अब बिकेगी या बचेगी? तो मेरी बहनें जरा मन्नत हिसाब से माने। एक औरत ने मन्नत मानी, जब मन्नत की बात आके तो सुनो, और वो भी बड़े पीर साहब का जमाना, छोटे से थे, मदरसे में पढ़ने जाते। एक बुढ़िया की बहू थी मगर बड़ी खतरनाक जी बेशक। अब बहू सोच रहे हो सैयद साहब किसे कह रहे हैं। अब वो बुढ़िया की बहू, कोई बच्चा नहीं, कई साल शादी को हो गए, 10, 11, 12 या अल्लाह जाने कितने दिन हो गए, घर में कोई बच्चा नहीं। बुढ़िया ने औरतों ने कहना मन्नत बोल दे, मन्नत मान ले, अल्लाह गोद भर देगा, मन्नत मान ले। उसने सोचा ऐसी मानूंगी कि गांव में आज तक किसी ने मानी ना हो, समझे? बुढ़िया रात भर सोचती रही क्या मानूं क्या मानूं क्या मानूं। सुबह फजर बोली या अल्लाह अगर मेरी बहू के पोता हो जाएगा ना तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। क्या हाथ का बोलो? देखा तुमने मुरादाबाद में 9 हाथ का बकरा। बुढ़िया बोल गई तो बोल गई, अब कौन रोक सके? अल्लाह ने बहू को उम्मीद अता फरमा दी। बेशक क्या बात। बुढ़िया बोली 9 हाथ का बकरा काट
काटूंगी। अल्लाह ने उम्मीद अता फरमा दी। अब बुढ़िया ढूंढती फिर रही है बकरा मिल जा, नहीं मिलता। बेचने वाले खरीदने वाले जो होते उनसे मिल रही है 9 हाथ का बकरा चाहिए। बुढ़िया बोली ऊंट मां, बुढ़िया से वो बोले ऊंट बोल देती तो मिल जाता, 9 हाथ का बकरा कहां से मिले। बुढ़िया बोली अब क्या होगा। औरतों ने कहा वो तो औरतों वाली बात, अगर तूने बकरा नहीं काटा तो तेरा पोता नहीं बचेगा। औरतें ऐसी बातें बहुत करती हैं जी। और बुढ़िया की बहू ने जब सुना तो बुढ़िया की बहू इतनी खतरनाक बोली, बोल तो दिया इस बुढ़िया ने, अगर बकरा नहीं मिला तो इस बुढ़िया को काट दूंगी। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो बुढ़िया नहीं बचेगी, या तो बकरा कटेगा या बुढ़िया कटेगी आज। तो इसलिए कह रहे हो मन्नत जरा हिसाब से बोलियो। सूफी जी तुम भी ध्यान रखियो, तवज्जो। अल्लाह अल्लाह सुनो। अब उधर पोता भी पैदा हो गया और अल्लाह की जानिब से इम्तिहान। जैसे ही पोता पैदा हुआ उसकी तबीयत खराब। अब तो बुढ़िया के लेने के दिन पकड़ो बुढ़िया को, पकड़ो। बहू ने चांद ली छुरी, गई बुढ़िया। बुढ़िया घर में नहीं जा रही बेचारी, इधर आधर खाना खा। मुफ्तियों से पूछ रही है बता दो बकरा कैसे कटेगा। बोले क्या मतलब। बोले 9 हाथ का बकरा। एक मुफ्ती बोले बुढ़िया 3 बकरे जोड़ लिए। बोली तब भी नहीं, बोला भी एक ही है। अल्लाह अल्लाह बुढ़िया परेशान, कई दिन गुजर गए। अब जहां बड़े पीर साहब छोटे से सिपारा लगा हुआ, उस दौर का नूरानी चेहरा, खूबसूरत चेहरा, बड़े पीर मदरसे को जा रहे। पीछे देखा बच्चा बड़ा खूबसूरत है। बुढ़िया को क्या पता था। आला हज़रत से सुनो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। आला हज़रत बोले मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मेरे रज़ा ने अपने मुरीद अमजद अली को दे दी जेल से रिहाई, नहीं दिया तेरी समझ में भी आई। ये कभी कभी नारा संस्कृत में भी लगा दें। सूफी जी हैं तो कहीं भी नारा लगा सकते हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो रखो। कब बेटा कहां जा रहा, कब पढ़ने जा रहा हूं। इतना खूबसूरत चेहरा। अब वो फिर तो आले रसूल थे ना। तब प्यारा बुढ़िया ने सोचा जहां ये बच्चा जा रहा है इसका मतलब उस्ताद भी मुफ्ती होंगे। बुढ़िया भी पीछे से पहुंच गई। बड़े पीर जहां पढ़ रहे थे उनके उस्ताद के पास पहुंच गई और जाकर के कहने लगी मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे मैटर है, मसला हल कर दो। बड़े पीर के उस्ताद बोले सुन ले माई, 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं तो तेरी मन्नत लगवे बेकार। ऐसा करना घर चली जा और बच्चे के नाम का सदका कर दे और सदका बलाओं को टाल देता, मुसीबतों को टाल देता, आफतों को भगा देता है। बुढ़िया बोली नहीं बकरा तो कटेगा। बुढ़िया को भगा दिया। पेड़ के नीचे बेचारी रो रही थी। कहाँ रो रही थी। अब बच्चे आ रहे थे, कोई गुट्टियां मार के भाग रहा, कोई बच्चों की आदत। बुढ़िया रोती जा रही है मगर बड़े पीर उसके सामने जाके खड़े हो गए। आहा कौन थे ये। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। कौन थे ये। बड़े पीर, बड़े पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीन। ऐ अल्लाह आज मुझे और इन्हें सबको गौसे पाक का सदका ता फरमा। आमीन। मेरे मौला तू मेरे भाइयों को बहनों को सबको इतना दे, इनकी दुनिया भी रोशन कर दे और इनकी आखिरत भी रोशन। आमीन आमीन। इन बच्चों ने, कमेटी वालों ने मिलजुल करके ये काम किया सब ने। ऐ अल्लाह मौला परवरदिगार तू इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। आमीन। इस मोहल्ले में 4
चांद लगा दो, बरकतें और रहमतों का नुज़ूल फरमा। आमीन आमीन गौसे पाक का सदका हम सबको अता फरमा। आमीन। अब पीराने पीर कड़े, बुढ़िया रो रो के आंसू पोंछ पोंछ के ना बकरे से कम डर रही थी, छुरी से ज्यादा डर रही थी, क्योंकि बहू बड़ी खतरनाक थी और सोचा कि छोड़ेगी नहीं बहू, क्यों कई मरतबा पटकी मार चुकी थी। बात बात बहू ऐसी है, सास को पटक लेती है, समझे। मगर तुम भी कम नहीं हो, घर जाके इतनी मोटी गालियां बकते हो। बाज बाज ऐसा ही है, खाली मूली अपनी बीबी को गाली बकता। भाई एक बात बताओ यार, ठंडे दिमाग से सोचो, उसने क्या बिगाड़ा। हजरत मंजर साहब, काम अपना अच्छा नहीं चल रहा और बेचारी बीवी गाली सुन रही है, क्यों भाई? बाहर किसी से लड़के आ गया, बीवी की सर्विस हो रही है, क्यों भाई? जूता चप्पल गाली यूं यूं, तो गलत है यार, ये बात गलत है, ऐसा मत करना ना जी। और मेरी बहन भी कम नहीं है, बाज बाज जब तक इसकी महीने में सर्विस ना हो ये भी चैन से बैठती नहीं है। समझ रहे नहीं इमाम साहब? जी जी जी। इमाम साहब नहीं बोल रहे डर के मारे, सोच रहे कि मेरे घर बात ना पहुंच जाए। तवज्जो है ना? जी जी जी। अल्लाह अल्लाह सुनो जरा, पीराने पीर रोशन ज़मीर, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रहे माई मैं कैसे जाऊं, का बेटा जा, का माई तुम क्यों रो रही हो, कैसी रो रही हो, का बेटा जा, जाने दे, बड़े पीर वाले कैसे चला जाऊं, मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ जहां रोते हुओं के आंसू पोंछे जाते हैं। बड़े पीर ने कहा माई बताओ, हो सकता है मसला मैं हल कर दूं, का बेटा तू कैसे बताएगा, इतना छोटा बच्चा, बोल तूने कभी 9 हाथ का बकरा देखा? बड़े पीर बोले मामला क्या है, कैसे ऐसे मन्नत मानी, का फिर बकरा मिला या नहीं मिला? बुढ़िया बोली 4 हाथ का मिल गया है। बड़े पीर बोले मुझे अपने घर ले चलो, वो 4 हाथ का बकरा 9 हाथ का कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसे पाक की शान है आला, पूरी दुनिया में है आपका बोलबाला। कहा मुझे ले चलो, 9 हाथ का बकरा कर दूंगा। बुढ़िया बोली बेटा देख लिए बहू बहुत खतरनाक है। कहा देख लिए, फिर भी उन्हें क्या पता था कि ये अली के पोते। जी जी। नबी ने खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। ये हजरत अली के पोते। कहा चलो माई घबराओ मत, उधर ऐलान होगा, घर भर गया साहब, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ रही है। सब लोग पहुंच गए, मुफ्ती साहब आ गए, कहा मुफ्ती साहब का ये है। और जो बड़े पीर का चेहरा देखा तो लोग देखते ही रह गए। जी जी, दीवाने हो गए। सुभान अल्लाह। का ये है, इतने छोटे बच्चे। कहा बेटा बताओ बताओ मसला बताओ, 9 हाथ का करो बकरा। तुम सोच रहे ना रबड़ की तरह खींच के करेंगे, ऐसे थोड़ी सुनो कैसे किया। बड़े पीर बोले माई जरा बताओ तुमने क्या मन्नत मानी? का बेटा 9 हाथ का बकरा काटूंगी। ये मन्नत मानी थी तो फिर मिला का नहीं मिला का? कितने हाथ का मिला? 4 हाथ का बकरा मेरे पास लेके आ। बकरा लाया गया, बड़े पीर ने उस बकरे पे हाथ फेर दिया। का वो पोता मेरे पास लेकर के आओ जो पैदा हुआ, वो पोते के सर पे हाथ रख दिया। पीर कहने लगे माई उस पोते का हाथ पकड़ के लो, इसके हाथ से नाप दो, इंशाअल्लाह पूरे 9 हाथ का निकलेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। तवज्जो है? जी जी जी। अल्लाह, ये पीराने पीर रोशन ज़मीर, इनका भी तो बचपने की सुना रहे हो जी। अब आए साहब सिफारा लेके घर पहुंचे।
ادھر حاجی لوگ حج کو جا رہے تھے. حاجی لوگ کہاں جا رہے تھے بولو؟ حج کو جا رہے تھے. جب حج کو جا رہے تھے تبھی بڑے پیر نے دیکھا اور دوڑتے ہوئے گھر گئے. امی جان امی جان. ماں ڈر گئی میرے بیٹے کو ہو کیا گیا. جلدی سے نکلی, لگایا سینے سے, کیا بات ہے میرے لال؟ کہا ماں حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں, میں بھی چلا جاؤں حج کو. میں اللہ کا گھر دیکھوں, رسول اللہ کا در دیکھوں. بے شک بے شک. ماں بولی بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو, تم پہ حج فرض نہیں ہے, ابھی تم پڑھو, آگے چل کے خوب ہو جائے گا. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ماں نہیں میں تو جاؤں گا. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ماں ٹھیک ہے. کہا ماں اگر اجازت ہو تو میں دروازے پہ جا کے دیکھ لوں. کہاں بیٹا چلے جاؤ. بڑے پیر دروازے پہ کھڑے اور حاجیوں کو دیکھ رہے. ماں نے اپنے لال کو دیکھا اور دل میں خیال آیا میرے بیٹے کو کتنا زیادہ خانہ کعبہ دیکھنے کا شوق ہے. اس ماں نے اندر ہی بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کر دی, اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے. اللہ نے دعا قبول کر لی اور جیسے ہی دعا قبول ہوئی اللہ نے ہوا چلا دی. ہوا آنکھوں میں پڑی, بڑے پیر کی آنکھیں بند ہوئی. آنکھیں ملنے کے بعد جب آنکھیں کھولی تو دروازے پہ حاجی نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ موجود ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ماں کی دعاؤں میں ہے یہ اثر, اور بابا فرید الدین کو جنگل میں ملی شکل. جانتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا اس پہ, پڑھ دوں؟ جی جی جی. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. بہت اچھے بہت اچھے. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. بولو یا غوث المدد. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. وہاں کا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا.